آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر دہشت گرد حملے کی گتھیاں سلجھنے لگیں۔ بی بی سی نے ساجد اکرم کے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کرنے کی تصدیق کر دی۔ بلومبرگ کے مطابق دونوں نے بھارتی پاسپورٹ پر سفر کیا۔ بی بی سی کے مطابق والد نے بھارتی اور بیٹے نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر سفر کیا۔ دونوں حملہ آور یکم نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس سڈنی روانہ ہوئے۔ آسٹریلوی ٹی وی کے مطابق ساجد اور نوید اکرم عسکری انداز کی تربیت لینے کے لیے فلپائن گئے تھے۔ فلپائن امیگریشن کی ترجمان نے بتایا کہ فلپائن جانے کے لیے 50 سالہ ساجد اکرم نے انڈین پاسپورٹ استعمال کیا تھا۔ دونوں نے فلپائن کے جنوبی شہر ڈاواوا کی اپنی حتمی منزل بتایا تھا۔ اس جریدے میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ واقعے میں راکٹ ملوث ہونے کے شواہد بھی پائے گئے ہیں۔ سڈنی واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ناکام، بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا زمیں بوس ہو گیا۔ سڈنی میں دہشت گرد حملہ کرنے والے بھارتی نکلے۔ نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے شہری نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ کہا حملہ آوروں کا تعلق بھارت سے ہے۔ نوید اکرم کی والدہ اٹلی کی شہری ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نے حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا۔ آسٹریلوی حکام کا بھارتی انٹیلیجنس حکام سے رابطہ، حملہ آور کی پس منظر کی تفتیش کے لیے معاونت مانگ لی۔ بھارتی انٹیلیجنس نے تعاون کا یقین دلایا۔ سڈنی حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کسی بڑے انتہا پسند گروپ کے ملوث ہونے کا امکان نہیں۔ دونوں حملہ آور شدت پسند نظریات سے متاثر تھے۔ نوید اکرم کو 2019 میں آسٹریلوی خفیہ ایجنسی کے جانب سے زیر نگرانی رکھا گیا تھا۔ اس وقت نوید اکرم کو خطرہ نہیں سمجھا گیا تھا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا اسلحہ قوانین مزید سخت کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کی سڈنی بیچ حملے کی ہیرو احمد الاحمد کی اسپتال جا کر عیادت۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا احمد الاحمد کو خراج تحسین کہا آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور سے بندوق چھینی اور بے شمار زندگیاں بچائی۔ آپ سارے آسٹریلیا کے ہیرو ہیں۔ آپ نے برائی کا انسانیت کی طاقت سے مقابلہ کیا۔ احمد نے عربی میں ویڈیو پیغام کے ذریعے خیر خواہوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق احمد الاحمد کے علاج کے لیے 19 لاکھ سے زیادہ آسٹریلوی ڈالر جمع ہو چکے ہیں۔ اوباڑو میں اغوا کیے گئے تمام 10 مسافروں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق بازیاب مغویوں کو تھانہ کمرہ منتقل کیا گیا۔ دیگر مسافر قریبی کماد کی فصلوں میں چھپ گئے تھے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ڈرائیور اور ہیلپر اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق ایک مسافر دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوا۔ ڈاکوؤں نے ہارٹ اٹیک والے مریض کو راستے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ بس میں خواتین اور بچوں سمیت 29 مسافر سوار تھے۔ ڈاکو خواتین اور بچوں کو چھوڑ کر باقی مسافروں کو ساتھ لے گئے تھے۔ بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 265 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے پر برقرار۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ سانحہ اے پی ایس قربانی کی لازوال داستان۔ کسی کا لخت جگر بچھڑا، کسی کا بھائی جدا ہوا۔ سانحہ نے پاکستانی قوم ہی نہیں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا۔ پرنسپل، اساتذہ، طلبہ اور دیگر عملے سمیت 140 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا۔ پاک فوج اور عوام دہشت گردوں سے آج بھی نبرد آزما۔ وطن کی خاطر اپنے پیاروں کو کھونے کے باوجود حوصلے جوان۔ اپنی جانیں وار کر امن کی بنیاد رکھنے والوں کی قربانی کو قوم کا سلام۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا اے پی ایس شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا قوم معصوم بچوں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات چیت ممکن نہیں۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دل خراج سانحہ پوری قوم کے لیے ایک عظیم آزمائش تھا۔ اے پی ایس کے معصوم بچوں، اساتذہ اور عملے کی قربانیاں ہمیشہ ہماری قومی یادداشت کا حصہ ہے۔ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے۔ پوری قوم شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کے نام نہاد سیکولر چہرے سے نقاب اتر گیا۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان ڈاکٹر کا حجاب سر عام کھینچ لیا۔
वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकर्रुरी के लाटस देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतारें, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहा पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस का बिहार के वज़ीर आला से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कांग्रेस का कहना है आला ओहदे पर फायज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वक़ार पामाल किया। ये ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। ऐसी बदतमीजी नाकाबिल मुआफ़ी है। फैज हमीद और बानी पीटीआई पर नौजवानों के जहनों में जहर भरने का इल्ज़ाम। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कौम के नौजवानों को इंतशार पर लगाया गया, ऐसे रास्ते पर चलाया गया जिससे इनका मुस्तकबिल ख़राब हुआ। फैज हमीद ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, इनको मिलने वाली सज़ा से एक मिसाल कायम हुई। आज जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है इसका भी एहतसाब हो सकता है। फैज नियाज़ी गठजोड़ पाकिस्तान के तबाही ट्रैक से हटाने के लिए था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने करार दिया मामले की हसासियत के पेश नज़र चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के तहत 2 रुकनी बेंच की तश्कील बिल्कुल कानूनी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में वाज़ेह किया बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है। खुसूसी बेंच की तश्कील कोई नई मिसाल नहीं। आला अदलिया माजी में जजेस पर एतराज़ और बेंच से अलहदगी के उसूल वाज़ेह कर चुकी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी चीफ जस्टिस के खिलाफ तासुब की कोई एक कानूनी वजह भी बयान नहीं कर सके। अदालत ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को फरीक बनाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की खुदंदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखोपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। सुंदर फेज 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वॉरबर्टन ननकाना साहब में 544 फ्लैट्स दिए जाएंगे। जंग में 1300 और कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद प्लॉट मिलेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का रात गए पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा मरीज रुलते रहते हैं और अस्पताल इंतजामिया मोबाइल फोन इस्तेमाल करने में मसरूफ रहती है। वज़ीर आला KP ने कहा आज के बाद अस्पताल इंतजामिया और सरकारी मुलाजमीन दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आला शिकायत सेल फाल बनाने जा रहे हैं। आप शिकायत भेजें, बाकी काम मेरा है। जो भी दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करता है उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजें। अफगानिस्तान में अमेरिकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का सबब दी। डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है इनखला के दौरान $7.1 अरब का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में रह गया। 2021 में तालिबान ने 10 लाख के करीब फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। तालिबान नुमाइंदों ने बताया कम अज़ कम निस्फ ज़ख़ीरा अब लापता है। लापता असलहा के फ़रोख्त, स्मगल या ज़ाया होने के इम्कानात ने ख़तरात को कई गुना बढ़ा दिया। काबुल और कंधार में असलहा की गैर कानूनी मंडियाँ फैलाव की बड़ी अलामत हैं। असलहा सरहद पार शिद्दत पसंद गरोहों तक भी पहुंचने की रिपोर्ट्स। पाकिस्तान असलहा के फैलाव के महलिक असरात का सामना कर रहा है। जदीद हथियारों तक रसाई के बाद दहशतगर्द जमात TTP के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर भरपूर मज़ाहमत कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का एक बार फिर पर्दाचाक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट गद्दार वतन मीर यार बलोच के नाम पर बारहा पैगाम रसानी में मुलव्वस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीर यार बलोच के नाम पर मनगढ़ंत दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी। जाली अकाउंट मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच शनाख्त को दहशतगर्दी के फरोग के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है।
1971 की जंग में मुक्ति बाहिनी ने मशरक़ी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। जंग में पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। 1971 की जंग के गाजी पाक फौज के मेजर मुमताज़ हुसैन शाह रिटायर्ड ने जंग की आपबीती सुनाते हुए बताया कि अक्टूबर 1970 से लेकर अगस्त 1971 तक सलहद सेक्टर में तैनात रहा जो भी शख्स मुत्तहिदा पाकिस्तान के हक में था वो मुक्ति बाहिनी का दुश्मन था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुताल्लिक अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। अदालत ने 2019 से कबल वाली सीनियरिटी बहाल करने का हुक्म बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी बहाली को आईनी हक करार दिया। हुकूमत सिंध की जानिब से दायर अपीलें खारिज कर दी गईं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 238, गुजरांवाला में 251 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ज़ाए आलूदगी। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 रिकॉर्ड किया गया। धुंध की वजह से बंद होने वाली मोटरवेज खोल दी गई। कराची और बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटके। शहर कायद में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। PEC, HS, डिफेंस, नाज़िमाबाद भी लरज़ उठे। रात 12:51 पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर का लियारी का दौरा। मखदूश इमारतों का जायजा लिया। जो इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं उन्हें फौरी खाली करवाने का हुक्म। बलूचिस्तान का इलाका सोनमियानी और सिब्बी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस एक रोज के लिए मुअत्तल। रेलवे इंतजामिया के फैसले के तहत कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए रवाना होने वाली बोलान मेल आज नहीं चलेगी। सरहदी शहर चमन के लिए चलने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन सर्विस नागज़ीर वजूहात की बना पर मुअत्तल की गई। मुसाफिरों को पेशगी आगाही और मुतबादिल इंतजामात से मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम की जा रही हैं। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ ख़ुदरातियत की तौसीक की करारदाद मंजूर। UN में 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 8 ने मुखालफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की सख्त मज़म्मत। मग़रिबी किनारे को ज़म करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। अमरीकी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंग बंदी पर बातचीत हुई। अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। इस मामले पर सदर ज़ेलेंस्की और रूसी हम मनसब पुतिन से भी राब्ते में हों। ट्रंप ने मनशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने BBC के खिलाफ $5 अरब हट जाने का दावा दायर कर दिया। बर्लिन में जारी यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी जमानतों की डॉक्यूमेंट्स पर पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल हो चुके। मॉस्को हतमी मुआहदे में जमानतें कबूल कर लेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है मग़रबी ममालिक सलामती की जमानत दें तो नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। रूस ने यूरोपीय यूनियन के जारहाना इक़दामात को बड़ा खतरा करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का कहना है यूरोपीय क़यादत के साथ बातचीत करने की कोई वजह नहीं। नाज़ीइज़्म पूरे यूरोप में दोबारा सर उठा रहा है। अमरीकी कौमी सलामती में नई हिकमत अमली का मकसद यूरोप को अपना हुक्म नाफिज करने से रोकना है।